Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to apply Laplace transform on some trigonometric function like apply Laplace transform on cos of t function, sine of t function, cos hyperbolic t function, sine hyperbolic, and so also apply e raised to power at into cos of at like is any constant या cos of bt. So in this video I will discuss apply Laplace transform on some trigonometric function. Now first we apply Laplace transform f of t is equal to e raised to power at into cos of pt. In this case f of t is e raised to power at in cos of pt. E raised to power at is first function and cos of pt is second function. First we apply Laplace transform on just trigonometric function cos of pt. We know Laplace transform of f of t is equal to cos of pt and Laplace transform of cos of pt is equal to s divided by s square plus b square. And in this case Laplace transform of sine of bt which is equal to b divided by s square plus b square. So we know Laplace transform of cos of bt is equal to s divided by s square plus b square. Now we use the shifting property for the Laplace transform of e raised to power at cos of bt. E raised to power at cos of bt which is equal to Laplace transform of e raised to power at cos of bt which is equal to f of s minus a. Laplace transform of e raised to power at cos of bt which is equal to s minus a divided by s minus a का whole square plus b square. We remove s with s minus a like according to shifting property e raised to power at f of t which is equal to f of s minus a. Laplace transform of e raised to power at cos of bt which is equal to s minus a divided by s minus a square plus b square like s minus a divided by s minus a का whole square plus b square. Same function similarly e raised to power at sine of bt. We know very well Laplace transform of f of t which is equal to sine of bt and Laplace transform of sine of bt which is equal to b divided by s square minus b square. Apply shifting property Laplace transform of e raised to power at f of t which is equal to f of s minus a. Laplace transform of e raised to power at s sine of bt which is equal to b divided by s minus a का whole square minus b square. In case of Laplace transform of e raised to power at cos of pt s minus a divided by s minus a का whole square plus b square. And in case of sine of pt e raised to power at is b divided by s minus a का whole square minus b square. नेक्स्ट आपके पास फंक्शन है e raised to power at cos hyperbolic pt. Laplace transform of cos hyperbolic pt which is equal to s divided by s square minus b square. हाइपरबोलिक के केस में आपके पास क्या आ जाएगा s divided by s square minus a square. Laplace transform of e raised to power at cos hyperbolic bt which is equal to s minus a divided by s minus a का whole square minus b square. अगर आपके पास गिवन है Laplace transform of e raised to power at sin hyperbolic bt तो साइन हाइपरबोलिक के केस में आपके पास क्या आ जाएगा Laplace transform of sin hyperbolic bt which is equal to b divided by s square minus b square. तो e raised to power at sin hyperbolic bt which is equal to b divided by s minus a का whole square minus b square. नेक्स्ट है आपके पास फंक्शन e raised to power at t raised to power n. f of t which is equal to t raised to power n Laplace transform of t raised to power n which is equal to n factorial divided by s की power n plus 1. Laplace transform of e raised to power at t raised to power n which is equal to n factorial divided by s minus a whole power n plus 1. n factorial divided by s minus a whole power n plus 1 using shifting property. नेक्स्ट है आपके पास cos of at into cos hyperbolic bt. फर्स्ट cos hyperbolic bt which is equal to e raised to power at plus e raised to power bt plus e raised to power minus bt divided by 2 and cos of at into cos hyperbolic bt की जगह पे आप इसका एक्सपोनेंशियल के अकॉर्डिंग फंक्शन पुट करेंगे e raised to power bt plus e raised to power minus bt divided by 2 हाफ एंगल आइडेंटिटीज यूज करेंगे. cos of at into cos hyperbolic bt which is equal to half of e raised to power at cos of bt
प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए टी कॉज ऑफ बी टी। अब लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू कॉज ऑफ बी टी। अब कॉज ऑफ बी टी के अकॉर्डिंग आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाती है कि एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू कॉज ऑफ ए टी प्लस आपके पास एफ ऑफ एस माइनस बी प्लस एफ ऑफ एस प्लस बी। यहाँ पर आप शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। अब आपके पास कॉज ऑफ ए टी किसके अकॉर्डिंग है, शिफ्टिंग एस माइनस बी डिवाइडेड बाई एस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एस प्लस बी डिवाइडेड बाई एस प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करें हैं, हाफ ऑफ दोनों के साथ मल्टीप्लाई, इसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है एस माइनस बी डिवाइडेड बाई एस माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एस प्लस बी इंटू एस प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर देखें, इसको अगर आप सिंप्लीफाइड करते हैं तो आप इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास जो आंसर आ रहा है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ ए टी इंटू कॉस हाइपरबोलिक बी टी विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एस माइनस बी डिवाइडेड बाई एस माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एस प्लस बी डिवाइडेड बाई एस प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो आपके पास क्या है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपके पास फर्स्ट फंक्शन गिवन है ई रेज टू पावर ए टी और सेकंड फंक्शन है टी स्क्वायर। तो सबसे पहले आपके पास जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर ए टी वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, वो आपके पास क्या 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ए। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर ए टी कैन बी obtained by using the property multiplication by t power n t raised to power n into f of t which is equal to minus 1 की पावर n dn divided by s n f bar of s। अब यहाँ पर माइनस 1 की पावर 2 टी एन की पावर 2 है, डी 2 डिवाइड बाई डी इसका 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ए। अब यहाँ पर आपके पास 1 डिवाइडेड बाई एस माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाता है, लाइक माइनस की पावर होगी वो प्लस हो जाएगा। आपके पास क्या जाता है 1 डिवाइडेड बाई एस का विद रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर आपके पास एस माइनस ए इसको -1 आपका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे, फिर सेकंड लेंगे, जो फाइनल आंसर आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई एस माइनस ए होल क्यूब। नेक्स्ट है आपके पास t इंटू साइन ऑफ ए टी। अब आपको ये चीज़ पता है कि यहाँ पर भी अगेन दो फंक्शन है, साइन ऑफ ए टी की लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी आपके पास कैलकुलेटेड है, वो आपके पास के a डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू साइन ऑफ ए की टी की लेप्लास है, टी के अकॉर्डिंग आप -1 की पावर n आपके पास 1 t की पावर n है तो जस्ट सिंगल डेरिवेटिव आ जाएगा a डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपके पास कांस्टेंट है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर -2। इसका आपके पास -1 है तो आप इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, और इसका इंटरनल डेरिवेटिव लेंगे एस स्क्वायर का तो वो 2s आ जाएगा। जो फाइनल आंसर आपके पास आ रहा है वो क्या है 2as डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास कॉस ऑफ ए टी के अकॉर्डिंग फंक्शन गिवन है तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ ए टी के एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर टी स्क्वायर है तो आप इसका 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे, -1 की पावर 2 डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एस का स्क्वायर, और आपके पास फंक्शन की लेप्लास अब आप इसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पर आपके पास क्या है एस इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आप इसको यहाँ पर देखें एस इंटू तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर आपके पास डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ नॉमिनेटर माइनस नॉमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो आपके पास यहाँ पर डायरेक्ट वो आ गया। तो फाइनल आंसर अब यहाँ पर देखिए 2 टाइम डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट टाइम भी क्वेश्चन रूल अप्लाई हुआ है, सेकंड टाइम भी क्वेश्चन रूल अप्लाई हुआ है। जब आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं तो उसमें आपके पास क्या होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर नॉमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ नॉमिनेटर। आपके पास डिनोमिनेटर का डायरेक्टली स्क्वायर लेंगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज पुट करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे नॉमिनेटर का माइनस का असाइनमेंट में यूज़ करेंगे। आपके पास क्या आ जाएगा नॉमिनेटर का फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। जब आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे इस केस में तो 2s आ जाएगा, और नॉमिनेटर साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो आपके पास 2s स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर एज इट इज़ पुट किया है, जब नॉमिनेटर का डेरिवेटिव लिया है तो वो 1 है। फिर अगेन जब इसका आपने डेरिवेटिव अप्लाई किया क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग आपके पास डेरिवेटिव अप्लाई हुआ है तो अगेन आपने डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिया है तो वो आपके पास 4 हो गए। डिनोमिनेटर एज इट इज़ नॉमिनेटर का स्क्वायर लिया तो -2s आ गया, माइनस आपके पास नॉमिनेटर एज इट इज़ डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिया है तो पहले यहाँ पर आपके पास पावर रूल अप्लाई हुआ है, फिर उसके बाद उसका इंटरनल डेरिवेटिव लिया है। जो फाइनल आंसर है वो आपके पास
पास आ गया है 2s³ माइनस 6a² एस डिवाइडेड बाई s² प्लस a² होल पावर 4। यहाँ पर आपने इस केस में 2 दफ़ा डेरिवेटिव लिया और दोनों दफ़ा आपने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया है। नेक्स्ट है आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू पावर at t रेज़ टू पावर n। सेम यहाँ पर आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज़ टू पावर n का आपके पास क्या फार्मूला है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s की पावर n प्लस 1। और यहाँ पर आपके पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई रही है, e रेज़ टू पावर 18 इंटू t रेज़ टू पावर n है, तो आपके पास क्या आ जाएगा f पावर ऑफ s प्लस a। तो आपके पास इस केस में क्या आ गया, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s प्लस a होल पावर n प्लस 1। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t e रेज़ टू पावर माइनस 4t साइन ऑफ 3t। अब यहाँ पर देखिए आपके पास t e रेज़ टू पावर माइनस 4t, अगर इसके अकॉर्डिंग आप इसके ऊपर भी आप शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर e रेज़ टू पावर माइनस 4t साइन ऑफ 3t, तो इसके ऊपर भी आपके पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का वो फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो सबसे पहले आपके पास t को सेपरेट कर दिया, e रेज़ टू पावर माइनस 4t साइन ऑफ 3t। अगर आप इसके ऊपर लेप्लास ट्रांसफॉर्म सबसे पहले साइन ऑफ 3t की क्या होगी, 3 डिवाइडेड बाई s² प्लस 3 का स्क्वायर, 3 डिवाइडेड बाई s² प्लस 9। फिर आपके पास e रेज़ टू पावर माइनस 4t इंटू दिस, तो उसके अकॉर्डिंग जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, s प्लस 4। फिर शिफ्ट आपके पास फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई s प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पर आपने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी और यहाँ पर आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्मर t इंटू एफ ऑफ टी, ये डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्मर के अगर जो गिवन फंक्शन है वो आपके पास क्या है, t की पावर n और n आपके पास क्या है 0 1 2 3 अप टू 1। तो आपके पास इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, माइनस 1 की पावर n, n आपके पास 1 है, फर्स्ट डेरिवेटिव 3 तो आप इसका डेरिवेटिव लेंगे। इस केस में जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। यहाँ पर तो नॉमिनेटर कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो सेकंड केस में आपके पास आ जाएगा लाइक क्वोशिएंट रूल जब भी अप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ नॉमिनेटर माइनस नॉमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया। अब यहाँ पर सबसे पहले जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई है वो आपके पास हुई है e रेज़ टू पावर माइनस 4t साइन ऑफ 3t। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं दोबारा से आपको बताती हूँ, ये डिफ्रेंसिएशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है, लाइक टी रेज़ टू पावर n के अकॉर्डिंग आप कैसे अप्लाई करते हैं। और यहाँ पर आपके पास है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डायरेक्ट f माइनस a आ जाता है, f ऑफ t e रेज़ टू पावर at, तो वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपके पास गिवन है t रेज़ टू पावर f1 ऑफ t, ये आपके पास डेरिवेटिव्स के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास जो गिवन फंक्शन मल्टीप्लिकेशन बाय पावर ऑफ टी, अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन बाय पावर ऑफ टी है तो उसमें आपके पास जो लास्ट में फार्मूला है वो ये आ जाता है -1 की पावर n dn बाई डी एफ पावर ऑफ s। ये आपके पास आ जाता है डेरिवेटिव्स, उसका ले लेते हैं। ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन बाय पावर ऑफ टी होगा तो फिर आप ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। और अगर आपके पास e रेज़ टू पावर t के साथ कोई भी फंक्शन गिवन है तो उसके ऊपर आप शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। Thank you so much for watching. For any question, please ask.